Good morning. Myself is Imran Khan, and today we discuss about chapter number first in geography, resources and development. Okay. So first of all, we discuss about here what are the resources or what is the resource. So what is the definition of resource? Resource, everything is found in our environment. Everything is found in our environment which satisfy our needs economically feasible and culturally acceptable is called resource. Okay, everything is found in our environment which satisfy our needs, otherwise fulfill our requirements, economically feasible means accessible, and culturally acceptable is called resource. For example, water, air, human beings, okay, etc. are the examples of resources. Resources or those things which fulfill our requirements those things which fulfill our requirements are called resources. In general word, those things which fulfill our requirement, everything is resource. Okay, so human beings convert a things into a resource through mechanical and chemical process
Second is human beings are the main function of resource. Human beings are main function of resource. Next, or human activities. Okay. Third is they are transformed. They means resources. Resources are transformed material available in our environment. इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि हमारे इन्वायरमेंट में जो भी मटेरियल अवेलेबल होगा उनसे जो है रिसोर्सेज को हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। There are three types of resources. As like first is natural resource. Second is artificial resource or human made resource. And third is human resource. Okay. So now we discuss about here every category of the resources. So first is natural resources. Okay. Natural resources. What is the definition of natural resources? So first of all, we know about natural resources. Resources that are provided by nature are called this natural resource. Resources that are provided by nature are called natural resources. Examples are water, air, soil, natural vegetation, wildlife,
मिनरल्स एसेट्रा। ओके, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने प्रोवाइड करवाए नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अब इसमें एग्जांपल में देखिए आप, वाटर है एक नेचुरल रिसोर्स है, एयर है एक नेचुरल है, सोइल है नेचुरल, वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है, ये सब क्या है नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज सेकंड टाइप आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। आर्टिफिशियल resources, such types of resources which are made by humans are called made by humans to fulfill their requirements are called as artificial resources. Let's see again. Such type of resources which are made by humans to fulfill their requirement are called as artificial resources. ऐसे resources जो humans के द्वारा बनाए गए हैं, किसके लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। दीज आर ऑल्सो नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इनको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी कहते हैं क्योंकि इनको ह्यूमंस बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देखिए, एज लाइक डैम्स, लेक्स, ओके, डैम्स, लेक्स, बिल्डिंग्स एसेट्रा। डैम्स है, लेक्स है, बिल्डिंग है, ये सब क्या है आर्टिफिशियल के रिसोर्स जो है एग्जाम्पल से है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म population, the term population refers as human resource। पॉपुलेशन जो है उसी को हम किस में रिफर करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में रिफर करते हैं। लेकिन अब हमें ये जानना जरूरी होगा कि जो है पॉपुलेशन का कौन सा जो पार्ट है वो ह्यूमन रिसोर्स है और कौन सा पार्ट ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज ए प्लेस, ये एक स्थान है। ठीक है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के जो नंबर्स है मैं 20,000 पॉपुलेशन है। कितनी है? 20,000 पॉपुलेशन है। अब इस 20,000 पॉपुलेशन के अंदर कौन कौन इंक्लूड है? मेन भी इंक्लूड है, वुमन भी इंक्लूड है, चिल्ड्रन बच्चे भी इंक्लूड हैं। ठीक है, अब इसमें से कौन सा पार्ट पॉपुलेशन का जो है
ह्यूमन रिसोर्स और कौन सा पार्ट ह्यूमन रिसोर्स में इंक्लूड नहीं होता है। तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स में जो है इंक्लूड होगा वो पार्ट होगा जो दूसरों की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, क्योंकि हमने सबसे पहले हमने फर्स्ट जो डेफिनेशन थी रिसोर्स की उसमें हमने यही जो है सीखा था, लर्न किया कि रिसोर्सेज क्या है, जो दूसरों की रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं वो रिसोर्स है, या जो हमारी नीड्स को कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, वो रिसोर्स है। अब ये पॉपुलेशन में जो दूसरों की रिक्वायरमेंट करते हैं, जैसे बच्चे, चिल्ड्रन आर नॉट रिसोर्स, आर नॉट ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ओल्ड पर्सन ये भी रिसोर्सेज नहीं होंगे। कौन होंगे? जो दूसरों की रिक्वायरमेंट पूरे करेंगे। इट मीन्स वो किसी ना किसी वे में जो है हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करे, वो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। देखिए अब ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होगी। इफ वी प्रोवाइड एजुकेशन, skills and trainings to the population of a particular place, then after some time it converts into human resource, ओके। कि अगर हम किसी भी प्लेस की जो पॉपुलेशन होती है उसको अगर हम स्किल, एजुकेशन और जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे तो कुछ समय बाद में ये जो पॉपुलेशन है किस में चेंज हो जाएगी? ह्यूमन रिसोर्स में चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने 100 स्टूडेंट्स लिए, इन 100 स्टूडेंट्स को हमने एजुकेशन दी, फिर हमने इनको स्किल, पर्टिकुलर फील्ड के अंदर स्किल प्रोवाइड करवाई, फिर हमने इनको ट्रेनिंग दी। तो ये जो 100 स्टूडेंट्स हैं ये आफ्टर ए सम टाइम कन्वर्ट इनटू ह्यूमन रिसोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे मेडिकल स्टूडेंट है, हमने 100 स्टूडेंट्स को मेडिकल सेक्टर में जो है डिप्लॉय कर दिया, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई, उनको स्किल्स प्रोवाइड करवाई, उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाई। उसके बाद में आफ्टर सम टाइम हम क्या देखेंगे कि दीज स्टूडेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड बिकम डॉक्टर्स। सो वी अंडरस्टैंड हियर कि पॉपुलेशन का वो भाग जिसको एजुकेशन दी जाएगी, जिसको स्किल दी जाएगी, जिसको ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसके बाद में वो किस में चेंज होगा? जो है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर चेंज हो जाएगा। सो ओके, हमने जाना है यहाँ पे कि रिसोर्सेज की क्या क्या टाइप्स होती है और रिसोर्सेज की क्या क्या जो टाइप्स होती है उनके अंदर उनके एग्जांपल्स और जो है वीडियो के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।